اسحاق ڈار کی میڈیا جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ بیسیکلی 24-25-26 کی ہماری برفی تھی، پرائم صاحب کی آفیشیل وزٹ تھی، میں ان کو اکمپنی کر رہا تھا، تو وہاں ہمارا الحمدللہ جو بزنس ٹو بزنس جو انویسٹمنٹ فورم ہے وہ پرائم صاحب کی چیئرمینشپ میں بہت ہی کامیاب ہوا، اور یہ تقریباً 250 کے قریب ایم او یو سائن ہوئے۔ یہ 5واں انویسٹمنٹ فورم چائنا کے ساتھ تھا ہمارا پچھلے 2 سال میں۔ 3 چائنا میں ہوئے، شینزن بیجنگ، اور اس کے بعد ہینگزو، اور 2 پاکستان میں۔ تو اس پہ تقریباً $20 ملین کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ جو کرنے کے جو چائنیز انٹرپرینورز ہیں وہ انہوں نے $20 ملین کیے ہیں، جو ایسٹیمیٹڈ کنورشن ریٹ جسے کہتے ہیں کہ یہ مٹیریلائز ہو کے ایم او یو سے ایگریمنٹ اور جو پروجیکٹ لگے ہوئے 30% منیمم دینا جا رہا ہے۔ اس وقت جو پروگرس ہے پچھلے جو ایم او یوز ہوئے ہیں، اگر الحمدللہ 30 بھی ہو تو یہ سے ہیوج فارن انویسٹمنٹ جو کہ پاکستان کی طرف توقع ہے۔ دوسرا جو تھا اس کے بعد پرائم صاحب کی بڑے بڑے جو گروپس تھے 24 کو ان کی اس بزنس فورم کے بعد ایم او یو سائننگ ہوئی وہاں پنجاب، اور وہ پروونس کا سسٹر سٹی جیسے کہتے ہیں سسٹر پروونس وہ سائن ہوا، اور اسی کے ساتھ وہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ کے حوالے سے وہ 2 ایم او یو سائن ہوئے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے بعد جو بی ٹو بی یعنی بزنس ٹو بزنس جو تھا بی ٹو بی، اس میں میں نے جو فرض کیا 250 کے قریب۔ پھر پی ایم صاحب کی اپنی میٹنگس تھی، کیونکہ ہم نے پھر اس کو ڈیوائڈ کرنا تھا 24 یہ آپ کو پتا ہوگا تو 75 ڈپلومیٹک ہماری یونیورسٹی ہے چائنا کے ساتھ، 75واں سال ہے، 21 مئی کو ہوا مکمل کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن چلتے 76 سال پہلے 21 مئی کو شروع ہوئے تھے آپس میں، تو 21 مئی 1951۔ تو وہ اس حوالے سے پرپیٹری میٹنگ میں جنوری میں 4 جنوری کو نے وزٹ کیا تھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورا سال ہم یہ جو سیلیبریٹ کریں گے پورے سال اس 75 اینیورسری کو پاکستان میں بھی سیلیبریشن ہوگی، وہاں بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو 75 سال کا لوگو ہے وہ 25 مارچ کی اس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے وزٹ میں اپنا کئی ایکٹیویٹیز ہوئی، اسی حوالے سے پاکستان میں اس میں کو ابھی ایک فنکشن ہوا جس میں ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے ان کے وائس چیئرمین تشریف ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کے، اور اسٹیمپ یادگاری اسٹیمپ اور ایک پوائنٹ یہ دونوں پاکستان میں سیدھا ہوٹوں میں ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناگریٹ سیلیبریٹ کریں گے پورے سال اس 75 اینیورسری کو، پاکستان میں بھی سیلیبریشن ہوگی، وہاں بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو 75 سال کا لوگو ہے وہ 31 مارچ کی میری وزٹ ہے اس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ میں اپنا کئی ایکٹیویٹیز ہوئیں، اسی حوالے سے پاکستان میں اس میں کو بھی ایک فنکشن ہوا جس میں ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے ان کے وائس چیئرمین تشریف لائے پاکستان میں پارلیمنٹ کے، اور میموریٹری اسٹیمپ یادگاری اسٹیمپ اور ایک پوائنٹ یہ دونوں پاکستان میں سیدھا ہوٹوں میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناگریٹ کیا، اور ایک چائنیز پارلیمنٹ کے جو وائس چیئرمین انہوں نے کیا۔ تو ان کا جو سسٹم ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی چائنا ہے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، وہ فل کیبنٹ ممبر ہوتا ہے، اور وہ پورے ممالک کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں۔ وہ مثلاً پاکستان کے ساتھ اگر ہیں تو سب پارٹیز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک یعنی رکھا ہوا تھا پروگرام 24 تاریخ کو، اس لیے پھر
हमें चंद करने के लिए वो प्रॉमिस भी थे जहाँ वो पहुँचे और मुझे और आसिफ बात सब हम बीजिंग चले गए क्योंकि प्राइम साहब ने शाम का तो वो वेरी काइंड उन्होंने मुझे कई महीने पहले उस मेरी प्रोग्राम के लिए मुझे चीफ गेस्ट नॉमिनेट किया हुआ था तो उसमें पाकिस्तान की मेजर 12 पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया हुआ और उसमें तकरीबन ओवर 100 पार्टिसिपेंट्स थे और उनके अपने भी जो है जो फॉरेन ऑफिस से और दूसरे जो रेलेवेंट लोग हैं वो भी आए हुए थे तो जैसे मैंने किया कि ये IDCPC से कहते हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट स्मार्ट विद चाइना तो वो पाकिस्तान के बिहार पे वज़ीर साहब की तरफ से वो ड्यूटी मैंने वहाँ दी और वो करीबन 4.5 घंटे की वो सारी थी उसमें जो हमारा CPEC का फोरम है पॉलिटिकल पार्टी के साथ सबसे लोग बात करते हैं और हमारा जो म्यूचुअल मैकेनिज्म है उसके ऊपर तो वो हमारी कलेक्टिव हमारा पॉलिटिकल पार्टीज और IDCPC और मैं हमने वो किया उसके अलावा उन्होंने PMLN के साथ एक छोटी मीटिंग की और एक हमने MOU साइन किया और बाकी पार्टी भी उनसे पॉलिटिकल कोऑपरेशन का MOU उनके भी साइन जरूर होते होंगे लेकिन जो मेन इवेंट था वो सबका इकट्ठा था जिसको मुझे चेयर करने के लिए इनवाइट किया गया था वो चेयर करने के लिए उनके अपने मिनिस्टर के साथ उसके बाद हमारी जो मेजर नेक्स्ट डे जो एक्टिविटीज थी वो प्रीमियर लीग के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी और वो करीबन 3 घंटे से ज्यादा पर हुई थी मीटिंग थी उसके बाद बैंक्वेट था और वो काफी डिटेल में तमाम चीजें थी उसके बाद थोड़ा सा गैप था और फिर अपना मेरे साहब ने रीफ्रेम करनी थी उनके जो वार्ड में जो लोग उनके हुए हैं शहीद करने जो मरे हुए हैं उनके हीरोज तो वो वहाँ उसके बाद जो प्रेसिडेंट शी की मीटिंग वॉज मेन मीटिंग उसके 25 को प्रेसिडेंट शी साहब के साथ और ये जो मीटिंग थी उसमें 2 हिस्से थे एक डेलीगेशन लेवल मीटिंग थी और एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग थी तो जो डेलीगेशन लेवल मीटिंग थी वो हमारा पूरा डेलीगेशन कई मिनिस्टर प्राइम साहब को की मार्शल साहब मैं और जो उसकी एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग थी उसमें मैं और भी मार्शल साहब के साथ बुला थे और उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा मिस्टर वांगी थे तो बड़ी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ताना माहौल में और बहुत ही यानी आगे हमने कैसे मज़ीद जाना है CPEC 2.0 को कैसे आगे लेके जाना है सड़क पर हाईवेज पे कैसे काम होना है लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर IT AI इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी सेहत हासिल अंडरस्टैंडिंग की आपने जो जॉइंट कलामियाँ आपने पढ़ लिया होगा तो इसके अलावा फ्यूचर में हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल पार्क्स के हवाले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो ये बहुत ही सस्टेंडेड विजिट थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो कि मैं अपने काउंटर पार्ट है और मिस्टर वांगी उनको कोट करता हूँ वेरी सक्सेसफुल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन चाइना तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सारा जो कंक्लूड हुआ तो उस शाम में या रात में 6 से 10 साढ़े 9 तक 75th जो है एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन थी तो मुझे 26 की सुबह UN सिक्योरिटी काउंसिल में मिनिस्ट्रियल डिबेट थी उसके लिए मुझे यहाँ पहुँचना था और मैं फिर वो रात वो इवेंट में भी अटेंड कर सकता था तो फ्लाइट कोई 7:30 थी इवेंट में 6 बजे शुरू होकर 9:30 खत्म होना था और उस वक्त तक तो मैं एयरपोर्ट 6 बजे के लिए निकलना था मैंने तो मैं वो इजाजत से किया थी तो मैं फिर 25 की रात को मिड-नाइट के करीब मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया था तो 26 की सुबह स्टेडियम डिबेट थी और जिसको चाइना के पास इस महीने
प्रेसिडेंसी थी, आपको याद हो, पिछले तरह हमारे साथ हमारे पास अदालत थी, तो मैं 3 दिन आके मैंने एक दिन मिनिस्ट्रियल डिबेट जिसके बाद होती है वो करता नहीं है, एक वो थी, एक हमने OIC और UN को कैसे नजदीक किया जा सकता है, स्ट्रेंथ टू बॉन्डिंग दूसरी वो थी, और तीसरा स्टील के ऊपर डिबेट। तो 3 दिन UN सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से मैंने सदारत की थी पिछले साल। इसी तरह वो आवामी साहब की 26 और 28 2 दिन उन्होंने सदारत कर रही थी, एक जो मिनिस्ट्रियल डिबेट थी और दूसरी 28 को ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्रिएट हुआ फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। उस हवाले से प्रेसिडेंटशिप का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, उसी के लाइट में चाइना में उसको ये जो है एक ग्रुप बनाया हुआ तकरीबन और 1 ईयर, तो उसकी मीटिंग थी, उसमें जो मिनिस्ट्रियल डिबेट थी उसमें 106 ममालिक ने हिस्सा लिया, एक सेक्रेटरी जनरल साहब, 15 परमानेंट मेंबर्स और 90 दूसरे मेंबर जो थे UN के तो मेंबर्स हैं, but they are not member of Security Council। वो मीटिंग बेसिकली UN Security Council की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से मैंने उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अपना सेक्रेटरी जनरल की मीटिंग के बाद पहली जो तकरीर की वो सब सदारत कर रहे हैं, वो अपना कंट्री स्टेटमेंट देते हैं और फिर दोबारा रिज्यूम कर लेते हैं प्रेसिडेंट करने को ड्यूटी को। तो जो पहली तकरीर थी पाकिस्तान के यहाँ पे मुझे वो मौका मिला, 106 ममालिक थे, चाइना के बाद दूसरा था, और उसमें हमने काफ़ी जो अफवाहें पब्लिश कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि और का हिस्सा बने, इस तरह की चीज़ें, तो आई मेड वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रेकग्नाइज नहीं होता और फलस्तीन जो है वो pre-1967 मॉडल्स और उसके साथ कुछ अल्जीरिया इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उसमें कोई लेसन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और हमें क्वेरीज आ रही थी फॉरेन ऑफिस में। तो मैंने उस दिन जो साथी लोग थे जिन्होंने मेरी स्पीच सुनी हो जो कि पाकिस्तान में भी एयर हुई, तो उसमें हमने अपनी पाकिस्तान की पोजीशन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा क्लियर कर दिया। तो उसके बाद जो 28 का था उसमें भी हमने ऑल फॉर ट्रांसपेरेंसी फॉर गवर्नेंस टू वर्क टुगेदर, क्योंकि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो काफी कमजोर, सब कहते हैं जो जिनका तजर्बा है कि पिछले कई साल बहुत कमजोर हो गए, जो वहाँ की रेजोल्यूशन है जो इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो भी ठीक, तो चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की रेजोल्यूशन हो या फलस्तीन की हो, उस पर दहाइयों बना हो तो कोई एक्शन नहीं है। तो हम दो चीजें जो कि अल्लाह ने हमें 182 वोटों के साथ 2012 में हमें 130 वोटों के साथ 182 वर्सेस 5, तो हम जब पहली जनवरी 2025 से इसके मेंबर बने हैं तो उस वक्त से हम इसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं रिफॉर्म्स के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर मैंने स्टेटमेंट में कैटेगोरिक उसकी एक पोजीशन ली, दोबारा याद कराया दुनिया को कि ये एक मसला है जो भूलना नहीं चाहिए, उसका हल होना चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक, कश्मीरी अवाम की सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स के मुताबिक ये उनके ख्वाहिशात का मसला होना चाहिए। फलस्तीन पर भी जो कि ये जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है कुछ चीज को उस पर भी आ जाता हूँ, तो उसमें भी मैंने वहाँ भी पाकिस्तान के बिहार पे तक के लिए इतना